मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज बेटा मैं न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ, मैग्नेटिज्म। इस चैप्टर से दो क्वेश्चन है बेटा, नीट लेवल एग्जामिनेशन और जेडब्ल्यू के क्वेश्चन। इजी चैप्टर है, थोड़ा ध्यान से सुनो और नोट भी आप लिखते जाओ। ये इंपॉर्टेंट है, आप बार बार बता रहा हूँ, नोट्स कीजिए, नोट आउट कीजिए जो मैं पढ़ा रहा हूँ। मैंने हर एक टीचर जो पढ़ा रहा हूँ नोट कीजिए। ओके, तो स्टार्टिंग बेसिक कंसेप्ट से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फर्स्ट जो जेडब्ल्यू के जो कंसेप्ट, फिर बेटा बोर्ड के टॉपिक स्टार्ट। बोर्ड के टॉपिक जब स्टार्ट हो ना, मैं अनाउंस करने वाला हूँ ये बोर्ड के टॉपिक है, ये याद रखिए। डिस्टिंग्विश कर देंगे अपन, पता है ना, नोटेशन डी लिख रहा हूँ बोर्ड के कंसेप्ट। नाउ फर्स्ट बेसिक कंसेप्ट रिलेटेड टू द मैग्नेटिज्म। ऑलरेडी आपको पता है 9th to 10th क्लास में हम मैग्नेटिज्म। Tism is what here? It's the property, the characteristics of magnet. Okay, right? So basics concepts are, listen here, point wise लिख रहा हूँ मैं यहाँ। देखो, for example, if you take here iron, cobalt or nickel, ये substance लीजिए, and if you place a magnet near to these substances, then what will happen, you know? Then these substances are attracted towards the magnet. Attracted, that depends upon the size बेटा। magnet का size ज़्यादा है तो ये substance ये attract, magnet size कम ये है तो इस direction में attract करेगी। Clear? Means the property of these substances which are attracted by iron, cobalt, nickel, like these substances, that is called what here? Magnetism. And the substance which exhibit the property of magnetism, that is called magnet. That is called magnet. What the attracting property? Attracting property is called magnet. Clear? Okay, that's magnet, and these are the magnetic substances. ये magnetic substances हैं, iron, cobalt, nickel. ठीक है? Now, so the basic definitions मैं पढ़ाने वाला हूँ. Basic definitions are starting is what is meant by poles. कैसे लोग करेंगे? How you identify the poles? How we define the north pole, south pole? देखो, इसलिए एक experiment, a small experiment. I think you have learned in the 9th class. एक ऐसे एक मैं magnet ले रहा हूँ, ठीक है, और एक ट्यूब है, black tube. ट्यूब में बहुत सारे आयरन पीसेस और ये मैग्नेट ऐसे मैं यहाँ इमर्स कर रहा हूँ, just dip the magnet into the what a tube which consists of a large number of small magnetic pieces. ठीक है, एक ट्यूब में ये मैग्नेट मैं ऐसे इंसर्ट कर रहा हूँ, right? And if you take out the magnet, then you will observe that ये magnetic substance के pieces है बेटा. You can take here iron pieces, no problem. Iron pieces here, right? Or take out, and if you observe, ऐसे observe कीजिए, most of the iron pieces are being attracted near to the end. Most of the iron pieces. The points on the magnet at which more attraction power is there. That points are called poles. समझा क्या? And that poles are formed just near to the ends of the magnet. एकदम बेसिक है ये. ओके, ध्यान दीजिए. तो देखो बेटा, यहाँ मैं ले रहा हूँ, here it is, ये मैग्नेट समझ लीजिए, ये मैग्नेट, और ये दो पॉइंट है, इस दो पॉइंट पर अट्रैक्शन पावर ज्यादा है बेटा. मैग्नेटिक सब्सटेंसेस का अट्रैक्शन पावर ज्यादा है, ठीक है. दिस आर द टू पोल. तो मैंने ये P1 P2 लोकेट कर दिया.
P1 P2 are not acting directly north pole south pole. मुझे पता नहीं है, ये आइडेंटिफाई करना है. जस्ट P1 P2 मैं नाम दे रहा हूँ. देखिए the points at which more attraction power is said, that is called poles. Experiment, immerse into the iron pieces. Consider iron pieces, and if you take out, most of the iron pieces are attracted at that point. ये बेटा P1 P2 दो poles. सर हमने तो सुनी ये नॉर्थ पोल साउथ, ये तो है ही. फर्स्ट ऑफ ऑल नॉर्थ पोल साउथ पोल के लिए बेटा लोकेशन फाइंड आउट करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट आपको परफॉर्म करना है. सर व्हाट इज दैट एक्सपेरिमेंट? यू नो अर्थ इज ए ह्यूज मैग्नेट. क्या अर्थ इज ए ह्यूज मैग्नेट? इट इज अट्रैक्ट ऑल द बॉडीज टुवर्ड्स इट्स सेंटर. रिमेंबर, इसका डिटेल इंफॉर्मेशन मैं फिर पढ़ा देता हूं. टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म में due to present of number of iron pieces, ores are present here inside the earth. So that is why it exhibit the magnetic properties. Earth is a huge magnet. अब अर्थ की एक मैग्नेटिक फील्ड है बेटा. मैग्नेटिक फील्ड देखिए यहाँ से मैग्नेटिज्म इलेक्ट्रोस्टैटिक नियरली 30% सेम फार्मूले रिपीट होते हैं बेटा. रिप्लेसमेंट करना है. ऑलरेडी मैंने पढ़ाया था इलेक्ट्रोस्टैटिक ग्रेविटेशन कंपैरिजन पढ़ाने को, मिनिमम 50% वही कांसेप्ट. यहाँ भी कंपैरिजन से पढ़ाने वाला हूँ. इलेक्ट्रोस्टैटिक मैग्नेटिज्म, ये थोड़ा ध्यान दीजिए. इलेक्ट्रोस्टैटिक मैग्नेटिज्म सेम नियरली 30% कांसेप्ट सेम फार्मूला वही रिपीट होते हैं. नाउ अर्थ इज अ ह्यूज मैग्नेट. एक काम करते हैं, एक मैग्नेट ले लीजिए. ये बेटा ये P1 P2 पोल्स के मैग्नेट ले लीजिए और ये मैग्नेट में अर्थ मैग्नेटिक फील्ड में सस्पेंड कर रहा हूं. अर्थ मैग्नेटिक फील्ड. बट यू नो व्हेन इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ाया था मैंने, देखो व्हेन इलेक्ट्रिक डाइपोल, याद आ रहा कि नहीं? इलेक्ट्रिक डाइपोल P = QVPL. when electric dipole placed in the electric field, then torque is act. Torque act होने से क्या होना बेटा? Yes, dipole rotate. Uniform electric field में place करना होता है, it is having only rotational motion. Non-uniform electric field में place कीजिए, क्या होना चाहिए? Rotational and translated. ऐसे होती है dipole. Rotate भी हो रही है, translate भी हो रही है. Rotate and translate, याद आ रहा कि नहीं? Yes. See, as it is, Earth has magnetic field. एक मैग्नेट में सस्पेंड कर रहा हूँ, प्लेस कर रहा हूँ, तो टार्क एक्ट होना चाहिए. ड्यू टू टार्क, that it will rotate, and ultimately it comes to the rest position. So rest position में क्यों आई है? Reason: the torque act in one direction is equal to torque act in the another direction if these two are equal in magnitude. So direction तो opposite है, दो है. Clear? Then the magnet comes to the rest position. Then the end which is pointing towards the north of the earth, definitely it will come. The magnet comes to the rest position such that the end which is pointing towards the north, that end is called north. ठीक है? अर्थ ये मैग्नेट है, इसका फुल डिटेल इंफॉर्मेशन मैं फिर देने वाला हूं बेटा, ये पॉइंट याद रखिए. एंड द एंड व्हिच इज पॉइंटिंग टुवर्ड द साउथ ऑफ द अर्थ, दैट इज कॉल्ड साउथ पोल. ये पॉइंट याद रखो. ओके, नॉर्थ पोल साउथ पोल. देखो थोड़ा मैं बेसिक स्टार्ट कर, आगे दो पोल के नाम आए बेटा. यस, अब इसका नामकरण कर लीजिए. यहां कम ऑन, ये पोल क्या है? यस, आई एम टेकिंग इट इज द साउथ पोल. ये क्या है? नॉर्थ पोल. यस, अगर नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. ठीक है. नेक्स्ट और एक साइन कन्वेंशन में देने वाला हूं. नॉर्थ पोल इज टेकन एज पॉजिटिव. ध्यान से सुनो, नॉर्थ पोल इज टेकन एज पॉजिटिव, साउथ पोल इज टेकन एज नेगेटिव. रीजन क्यों सर? क्यों पॉजिटिव? क्या रीजन? रीजन आपको पता है.
फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन्स आर स्टार्ट, रीजन भी पढ़ाया था देखिए, एंड इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन एंड्स ऑन द नेगेटिव चार्ज as it is. Same properties for the electric force line and magnetic force line. Here magnetic force line start from the north pole and ends on the south pole. देखिए वहां क्या बोला बेटा, start from the positive charge ends on the negative charge. याद आ रहा है, डिटेल में पढ़ाया था मैं मैग्नेटिक electric force line properties. So यहाँ बेटा start from north pole and ends on the south pole. Start means compass में positive होना चाहिए. That is why it is taken as positive और ये बेटा negative लेना चाहिए. But एक difference है, एक important difference है बेटा, electric force line and magnetic force line. Note it down. लिख दीजिए. That is electric force lines are open curve. Start from positive ends on negative, but does not start from negative. Okay, start from positive and ends on the what here, negative. These are the open curves. But magnetic force line देखिए start from north pole ends on the south pole, and inside the magnet it is start from south and ends on the north. That is the main important point between difference between the electric and magnetic force lines. Characteristics है magnetic. South to north, inside the north. South to north. इसका जो reason है आप जो south to north है बेटा, ये मैं classification में पढ़ाने वाला हूँ, इसमें बहुत सारे quantity पता होना चाहिए, just याद रखिए, right? So it is a closed loop. Magnetic force lines are closed loop. Electric force lines are open curves. Note this point. Electric force lines are open curves. Magnetic force lines are what? Closed loop. Clear? Second. चलिए ये सब टोटल टर्म्स बेटा मैं ओके नेक्स्ट टॉपिक में अप्लाई करने वाला हूं, सो आप लिखते जाइए. पोल स्ट्रेंथ डिनोटेड बाय स्मॉल m. पोल स्ट्रेंथ देखिए नाम में ही देखो मीनिंग, पोल स्ट्रेंथ मींस फोर्स. इजी से समझ लो, इजी से, एकदम डिफिकल्ट मत कीजिए सर, एकदम इजी कर मीनिंग पता होना चाहिए. पोल स्ट्रेंथ मतलब फोर्स experienced by the poles. हो गया बस. What is the force? समझ लीजिए बेटा, ये मैग्नेट है, यहाँ मैंने यहाँ आयरन पीस रख दिया. देखो बेटा, सपोज ये आयरन पीस है, और ये मैग्नेट रख दिया, ठीक है, नियर टू दिस. So कितनी फोर्स एक्ट हो रही है इस पॉइंट? What is the forces act on this iron due to this pole? That will be south or north. What is the forces act? The force possessed by the poles. Okay, that is called pole strength. Remember, south pole, north pole, both poles are having the same strength. याद रखिए, positive and negative charge, same strength, but the direction of electric field is different. Okay, slowly develop कर रहा हूँ concept, each and everything. Remember, pole strength, force possessed by the what here? Pole. That is called pole strength. और यहाँ बेटा आपको याद रखना है यूनिट्स एम्पियर मीटर. ये यूनिट सर ये कहाँ से आया? यूनिट्स एम्पियर मीटर आया क्वेश्चन मार्क. इसलिए बेटा नेक्स्ट एक डेरिवेशन से मैं एक इक्वेशन मैथमेटिकल इक्वेशन डिराइव करने वाला हूँ. वो इक्वेशन से बेटा अपनी ये यूज की थी पोल स्ट्रेंथ यूनिट्स याद रखिए. Just याद रखो, एम्पियर मीटर द यूनिट्स ऑफ पोल स्ट्रेंथ फॉर्मूला. नेक्स्ट ये एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन और यहां से कंपैरिजन स्टार्ट. देखो एट ए टाइम मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोस्टैटिक, ग्रेविटेशन, 3 चैप्टर एट ए टाइम पढ़ाई करो बेटा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, टू अवॉइड योर कंफ्यूजन.
जस्ट रिप्लेस करना है आपको, रिप्लेसमेंट क्या रिप्लेसमेंट करना है मुझे पढ़ा रहा हूं, जस्ट रिप्लेसमेंट। नाउ सो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट याद आ रहा कि नहीं? आप इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या पढ़ा था बेटा भैया? इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हो गया, वहां इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, सेम प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रिक डाइपोल डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, वही डेफिनेशन एज इट इज और वही कांसेप्ट में रिपीट कर रहा हूं, इजी करने के लिए। देखो मैग्नेटिक मूवमेंट मींस ये बेटा मैग्नेट बाहर मैग्नेट है, मैग्नेट साउथ पोल नॉर्थ, और एक पॉइंट याद रखिए, ये जो बेटा टोटल जो डिस्टेंस है ये टोटल लेंथ में ये ले रहा हूं, और द effective length that is nothing but between south and north pole I am representing with 2l denotation, that is this 2l is representation, टेक्स्ट बुक में 2l बेटा आपकी मर्जी, ऐसा कुछ नहीं है l b c बस एक डिस्टेंस ले लीजिए, ये 2l से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं 2l, 2 poles डिस्टेंस टोटल, ये दोनों बीच में रिलेशन याद रखो, 2l is equal to 5/6 of capital into the effective length, the distance between the north and south pole is equal to 5/6 times the what total length of the magnet, ये capital means 2l is less than capital, 2l is less than capital, ये कन्वर्शन याद रखिए, remember the conversion। if capital L की वैल्यू दे दी है, direct it is not given, if it is given you can find out the 2l 5/6 into l, याद रखो यहाँ effective length is taken as like a displacement, the shortest distance between north and south pole, मैं समझा सकता, चलो मैं पढ़ा रहा हूँ, देखिए समझ लीजिए, मैं मैग्नेट ऐसे बेंड कर दे रहा हूँ, मैग्नेट में बेंड कर रहा हूँ बेटा, ये ऐसे बेंड कर रहा हूँ, ऐसे बेंड कर दे रहा हूँ मैग्नेट, ये हो गया साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल, ठीक है, ये सेंटर समझ लीजिए, ये रेडियस मैं r ले रहा हूँ, r रेडियस r ले रहा हूँ। अब इस मैग्नेट के लिए इफेक्टिव लेंथ और एक्चुअल लेंथ क्या होना चाहिए? सर एक्चुअल लेंथ तो ये डिस्टेंस सिंपल बता रहा हूँ, डिस्टेंस इज नथिंग बट कैपिटल L, डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट व्हाट इज इफेक्टिव लेंथ, बस ये दो पॉइंट याद रखो, पता डिस्टेंस इज एक्चुअल लेंथ फॉलोड बाय द बॉडी, डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, स्टार्टिंग पढ़ा था, स्टार्टिंग। अब ये डिस्टेंस ये होगा l वैल्यू क्या होना चाहिए, कम ऑन बता दो, l वैल्यू क्या होना चाहिए? सेमी सर्कल में बेंड कर रहा हूं, अरे बेटा सेमी सर्कल में बेंड कर रहा हूं, रेडियस r है तो पाई r, समझा कि नहीं? सेमी सर्कल में बेंड कर रहा हूं, रेडियस r है तो लेंथ क्या होना चाहिए? पाई r, देयरफॉर एक्चुअल लेंथ effective length 2l is equal to, बता दो मुझे क्या होना चाहिए, होगा twice r, अरे बेटा ये r ये दोनों बीच में जो डिस्टेंस है शॉर्टेस्ट, twice r, you can write diameter also, ये वैल्यू twice r, ओके, कैसे लिखना चाहिए याद रखो, effective length 2l is taken as a displacement, write down, लिख दीजिए, effective length 2l is taken as a displacement, actual length as a distance, just याद रखो, ये बोर्ड का सिलेबस नहीं बेटा, बोर्ड का सिलेबस नहीं है, कॉन्सेप्ट समझ लीजिए बस, बोर्ड का सिलेबस है तो बहुत स्लो से डेरिवेशन में पढ़ाता हूँ, नो नीड, यहाँ यह थिंक कीजिए, थोड़ा फास्ट थिंक कर दो बस, राइट? नाउ समझा कि नहीं? अब बेटा यहाँ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m is nothing but इस डेफिनेशन पढ़ाने के पहले बेटा मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा रहा हूँ डेफिनेशन, फिर डायरेक्ट आगे बता दूंगा मुझे, so come on, remind electrostatics, याद कीजिए, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज,
two charges of equal magnitude, opposite sign, placed at certain distance. अब ये भी पढ़ाया था डिस्टेंस कैसे प्लेस करना चाहिए। अब ये पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, ये दोनों बीच में जो डिस्टेंस है ना बेटा, ये डिस्टेंस ऑब्जर्वर का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। नहीं तो ऐसे प्लेस किए समझो, ये पॉजिटिव नेगेटिव लाइक दिस, तो ये डाइपोल नहीं है, इट इज नॉट ए डाइपोल, इट इज डाइपोल। याद रखो, ये डिस्टेंस कम होना चाहिए और ये डिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए। नहीं तो फिर ऐसे एक स्टूडेंट ऐसे क्या समझे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, तो ये तो सेपरेट दिखा दे रहे, ये तो सेपरेट दिखा दे रहे, इट इज नॉट ए डाइपोल, दिस इज डाइपोल। डिस्टेंस बोल दो, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव चार्ज, मैग्नीट्यूड सेम, प्लस 5 माइक्रोकूलम माइनस 5 माइक्रोकूलम, particular distance when it is, and the distance between these two charge must be less than the observer distance। यहां से देखो, ठीक है। now अब बेटा यहां डाइपोल मोमेंट P equal to फार्मूला Q into ये L, Q into L याद रखना। The magnitude of any one of the charge into distance between the two charges, that is called dipole moment। dipole moment, हाँ। और बेटा डायरेक्शन बता दो, नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ dipole moment, ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होना चाहिए इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन, ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। सिंपल याद रखो, नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट इज रिटन एज P equal to Q into L, यहां यूनिट्स क्या बेटा, कूलम मीटर। हो गया सिंपल। अच्छा ऑफर बेटा, बाय 1 गेट 1 फ्री, याद है तो लिख दो फिर, मैग्नेटिज्म में लिख दीजिए, कम ऑन। हां, मैग्नेटिक मूवमेंट वन डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो लिख दो नेगेटिव टू पॉजिटिव, दिस इज द m bar, नेगेटिव टू पॉजिटिव m bar not p bar। therefore in magnetism क्या होना चाहिए, m bar is equal to, सिंपल कंपैरिजन, चार्ज के प्लेस में पोल स्ट्रेंथ लिख दीजिए, चार्ज के प्लेस में बेटा पोल स्ट्रेंथ, कंपैरिजन चार्ज के प्लेस में क्या लिखना चाहिए, पोल स्ट्रेंथ, और ग्रेविटेशन में क्या लिखना चाहिए, मास। तीनों चैप्टर एट अ टाइम, कंपैरिजन से पढ़ा देखो। यस, चार्ज पोल स्ट्रेंथ, the force possessed by the force, pole strength into distance क्या लेंगे बेटा, ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस कितना है बताओ, कहां से यहाँ का डिस्टेंस इफेक्टिव लेंथ 2l से मैंने रिप्रेजेंट किया था, 2l से रिप्रेजेंट किया था, ठीक है। सो दिस इज द 2l, हो गया सिंपल है कि नहीं, q into l, ये into 2l। यूनिट्स इज ये एम्पीयर मीटर, पोल स्ट्रेंथ यूनिट एम्पीयर मीटर और लेंथ यूनिट मीटर, तो क्या होना चाहिए, एम्पीयर मीटर स्क्वायर। ये रिजल्ट में पढ़ा था बेटा, फार्मूले से यूनिट्स लिख दिया हमने, ये एम्पीयर मीटर स्क्वायर, दैट इज द मैग्नेटिक मूवमेंट। क्लियर? नेक्स्ट फोर्थ वन, मैग्नेटिक एक्सिस। सब बेसिक वर्ड्स है ये, ओके समझ लीजिए। मैग्नेटिक एक्सिस वहां भी लिया था हमने एक्सियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, एक्सियल लाइन इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेशन डिराव किया था हमने। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सियल लाइन, ऑन द इक्वेटोरियल लाइन एट पर्टिकुलर एंगल थीटा, ओके ठीक है बेटा। ये वीडियो होने के बाद आप इलेक्ट्रोस्टैटिक में एक बार रिवाइज कीजिए, देख लीजिए, ओके राइट। नाउ मैग्नेटिक एक्सिस मींस मैग्नेट, ये बेटा साउथ पोल, ये क्या है नॉर्थ पोल, दिस लाइन पासिंग थ्रू द लाइन पासिंग थ्रू द poles of the magnet, poles of the magnet is called magnetic axis।
कर रहा हूं आपको, इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर रिवाइज कर रहा हूं। वहां नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, the line passing through the negative and positive charges, this line is called that magnetic axis or axial line. क्या बेटा? Axial line. Say Ujjain. And the line, देखो, साउथ पोल, नॉर्थ पोल, the line passing through the, ये तो बेटा मैग्नेट क्या, ये एक्सियल है, ये सेंटर ऑफ द मैग्नेट, सेंटर ऑफ द मैग्नेट, ठीक है। the line passing through the center of the magnet and perpendicular to the axial line. Note it down. The line passing through the center of the magnet and perpendicular to the axial line. Come on. ये बेटा देखो, कैसे बेटा मत कीजिए, कैसे बेटा मत करो, perpendicular होना चाहिए। ये is 90 degree. This is called equatorial line. Equatorial line. इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी पढ़ाया था बेटा। देखो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, ये एक्सियल लाइन, ये सेंटर, ये इक्वेटोरियल लाइन, याद आ रहा कि नहीं? ओके, ये इक्वेटोरियल लाइन, सेम कांसेप्ट, चेंजेस, क्लियर? ओके, ये मैग्नेटिक एक्सिस के बारे में हर एक डिफरेंस। सर इलेक्ट्रोस्टैटिक में नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज तो सेपरेट है बेटा, सेपरेट आप ले सकते हो सेपरेट। पॉजिटिव चार्ज, यस पॉजिटिव चार्ज +5 माइक्रोकूलम +10 माइक्रोकूलम, नेगेटिव चार्ज -10 सेपरेट ले सकते हो आप। बट इन मैग्नेटिज्म यू कैनॉट टेक नॉर्थ पोल सेपरेटली, नहीं ले सकते। साउथ पोल सेपरेट चाहिए मुझे, नहीं पॉसिबल नहीं है। सर क्यों पॉसिबल नहीं है? क्यों पॉसिबल? सपोज ये बार मैग्नेट, ये क्या है? बार मैग्नेट, ये नॉर्थ पोल है, समझ लो बेटा, ये क्या है? नॉर्थ पोल, और ये साउथ पोल। अब मैं क्या कर रहा हूं, ये मैग्नेट को दो पार्ट डिवाइड कीजिए, दो पार्ट डिवाइड कर दो, चल कर दिया, दो पार्ट डिवाइड। मैं डायग्राम ड्रा करके बताऊंगा, डायग्राम ड्रा करके बताऊंगा। ये मैग्नेट है, साउथ पोल, नॉर्थ पोल, दो पार्ट डिवाइड कर दो, दो पार्ट डिवाइड। ये हो गया ये पार्ट और ये पार्ट, और इस पार्ट में देखो ये साउथ पोल है, सो इट विल अगेन व्हाट हियर अपोजिटली यू विल गेट हियर नॉर्थ पोल। तो ये नॉर्थ पोल है, तो ये क्या है बेटा? साउथ पोल। और ये मैग्नेट डिवाइड कीजिए, अगेन यू विल गेट साउथ पोल, नॉर्थ पोल। हां, साउथ पोल, नॉर्थ पोल। If you divide a very small amount, small part of the magnet, every small part having the two poles, magnetic, every small part possesses the magnetic moment. North and south pole दोनों में। Just a definition है, स्लो में बहुत डिटेल में पढ़ाने वाला हूं बेटा। मैग्नेटिक मूवमेंट, व्हाई यू आर गेटिंग मैग्नेटिक मूवमेंट इन द सब्सटेंस, रीजन क्या है? ओके, वो डिटेल इंफॉर्मेशन है, जस्ट याद रखिए, हर एक पॉइंट समझ में आना चाहिए। इफ यू डिवाइड a number of parts, every part possesses the magnetic moment, two poles, so that is why monopoles do not exist. Conclusion, monopoles do not exist. You cannot separate the two poles, and don't try to separate. Okay, so yeah, monopoles do not exist in magnetism, do not exist. Simple में लिखते हैं बस, A statement याद रखिए। Clear? Next, okay, sixth point is, okay, clear? Now अब यहां बेटा मैग्नेटिक मूवमेंट यम बार, मैग्नेटिक मूवमेंट यम बार,
पर थोड़े एप्लीकेशन ले लो which are important for computer examination part, magnetic moment पर ध्यान दीजिए. Okay, right. Now application 6 point, ये important है 6 point. Application. यहाँ से start. Original picture start from this one. Okay. Application of magnetic moment. Magnetic moment. यह होगा यह रिप्रेजेंट. Okay. Right. Fast करो. Right. Now, first one is application. अरे बेटा ये एक मैग्नेट है. ये क्या है? एक मैग्नेट. देखो ध्यान से, एक मैग्नेट है. ये बेटा ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, और ये मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ पोल. वहां नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज. एंड हियर मैग्नेटिक मोमेंट m इज इक्वल टू, फार्मूला पता है आपको, m इनटू 2m. मान लीजिए मैंने ये मैग्नेट को दो पार्ट डिवाइड कर रहा हूं. कितने? दो पार्ट डिवाइड. ऐसे दो पार्ट डिवाइड कर दो बेटा मैग्नेट. if magnet divide into two parts डिवाइड कर रहा हूं. ऐसे from the equally two parts from the center. ऐसे कट कर दो vertically perpendicular to the length. चल ठीक है, कट कर रहा हूं. तो बेटा यहाँ जो दो पार्ट है देखिए आप, ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल, और ये क्या होना चाहिए? ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल. इस पार्ट का मैग्नेटिक मोमेंट मैं m डैश ले रहा हूं. सर m डैश का क्या होना चाहिए? देखो बहुत सारे केसेस है. परपेंडिकुलर टू लेंथ डिवाइड कर रहा हूं, एक केस. अलोंग द लेंथ डिवाइड कर रहा हूं, सेकंड केस. थर्ड केस ऐसे भी डिवाइड कर रहा हूं, ऐसे भी डिवाइड कर रहा हूं, लेंथ वाइज भी एंड परपेंडिकुलर टू लेंथ. जब क्या होना चाहिए? ओके, दैट्स इट. सो यहां बता दो बेटा, ये डैश सिंबल है तो इसका लेंथ क्या होना? मिड पॉइंट से मैं डिवाइड करता हूं. लेंथ क्या होना चाहिए? इसका लेंथ क्या होना चाहिए? 12/2. ये कितना है बेटा? 12 twice l. तो m dash is equal magnetic pole strength does not change. Same है ये. When it changes, when the cross section area changes. ऐसे जब डिवाइड कर रहा हूं, क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज हो रहा है ये, then only pole strength changes. Yeah. तो m dash is equal to pole strength, लेंथ क्या है? 12/2. 12 बाय ये क्या है बेटा? m into 12/2. ये क्या है? मैग्नेटिक मोमेंट. तो आंसर क्या होना चाहिए? m/2 हाफ. तीन पार्ट डिवाइड कर दो, m/3. चार पार्ट डिवाइड कीजिए, m/4. n पार्ट्स डिवाइड कर दो. for n parts आंसर क्या होना? सिंपल. यस, m/n खत्म along the lengthwise. Okay.